Good morning, students. Welcome to the online classes of City Convent School. And today we will study the first lesson of English subject of class 3. And the lesson is The Princess and the Pea. And the story is written by Hans Christian Andersen. So let's get started. We'll read out first the first paragraph. Once upon a time, there was a prince who wanted to marry a princess, but she would have to be a real princess. The queen mother tried her best to get him a real princess, but he was very disappointed. एक बार की बात है, एक राजकुमार जो है वो एक असली राजकुमारी से शादी करना चाहता था और उसकी उनकी जो माताश्री जो मदर क्वीन थी उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन राजकुमार जो है बहुत ही निराश था. In the next paragraph, one evening a terrible storm arose. There was thunder and lightning, and the rain poured down in torrents. Suddenly, a knock was heard at the castle gate, and the old king's guard went to see what the matter was. फिर क्या होता है, एक दिन शाम को एक बहुत ही भयंकर तूफान उठा और चारों तरफ बिजली चमक रही थी और लाइटनिंग हो रही थी और इसके साथ साथ बहुत ही भारी बारिश हुई. तभी अचानक क्या होता है, एक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है महल के मुख्य द्वार पर, और वहाँ के जो प्रहरी थे, गार्ड थे, उन्होंने जाकर देखने का प्रयास किया कि क्या बात है, ये खटखटाने की आवाज़ क्यों आ रही है. In the next paragraph, when he opened the gate, he was surprised to learn that the girl who was knocking at the gate was a princess who had run away from her cruel father. The wind and rain made her look a horrible sight. Her hair and clothes were wet, and the water ran down her cheeks. She was shivering. The king's guard took her to the queen mother. अब इसे हिंदी में समझते हैं हम लोग. When he opened the door, यानी जब प्रहरी ने दरवाज़ा खोला, he was surprised to learn that the girl who was knocking at the gate was a princess. तो उसे आश्चर्य हुआ यह देखकर कि एक लड़की ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, वह एक राजकुमारी थी जो कि भागी हुई थी अपने पिता की वजह से, जो एक बहुत ही क्रूअल फादर थे. द विंड एंड रेन मेड हर लुक अ हॉरिबल साइट. काफ़ी तेज़ बारिश और हवा की वजह से उसके हालात बिगड़े हुए थे. हर हेयर एंड क्लोथ्स वेयर वेट एंड द वाटर रैन डाउन हर चीक्स. बारिश की वजह से उसके बाल और कपड़े गीले हो गए थे और पानी जो है अभी भी उसके गालों से नीचे की तरफ बह रहा था. शी वॉज शिवरिंग, और वो ठंड से काँप भी रही थी बारिश की वजह से. द किंग्स गार्ड टुक हर टू द क्वीन मदर. तब प्रहरी ने उस लड़की को यानी उस राजकुमारी को लेते हुए क्वीन मदर के पास ले गया. We will soon find out if she is a real princess, thought the queen mother. She went into the guest bedroom, took all the bedding off the bed, and placed a pea on the bare bed. Then she laid 20 mattresses on the bed over the pea. जैसे ही प्रहरी राजकुमारी को लेकर क्वीन मदर के पास गए, क्वीन मदर ने सोचा कि हम बहुत ही जल्द जान जाएंगे ये जो लड़की है वह असली राजकुमारी है या नहीं. तभी क्वीन मदर जो है वो गेस्ट बेडरूम में गई
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिस्तर से सारे बेडिंग्स को हटा दिया और खाली बेड पे एक मटर यानी एक पी का दाना जो है रख दिया और उस दाने के ऊपर में उन्होंने लगभग 20 मैट्रेसेस 20 गद्दों को उस पी के ऊपर रख दिया। Next, then she laid 20 feather beds on top of the mattresses. The princess had to use a ladder to climb onto the bed. She was very tired, so the queen mother left her to rest. फिर क्या होता है, इतने सारे गद्दों को रखने के ऊपर महारानी ने 20 और फेदर बेड्स उनके ऊपर बिछा दिए। The princess had to use a ladder to climb onto the bed. इतने सारे गद्दों और फेदर बेड्स को बिछाने के बाद बेड इतना ऊंचा हो गया कि राजकुमारी को ऊपर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। She was very tired, so the queen mother left her to rest. राजकुमारी जो थी वो काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए मदर क्वीन ने उनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। The next morning, the queen mother said to her, "How did you sleep, dear?" "Oh dear me, very badly," she said. "I have hardly closed my eyes all night. Heaven only knows what was in the bed, but I was lying on something hard, so that I am black and blue all over. It was a horrible night." फिर क्या होता है, अगली सुबह को राजकुमारी के पास जाती है मदर क्वीन और उन्होंने राजकुमारी से पूछा कि हाउ डिड यू स्लीप डियर, कि तुम्हें कैसी नींद आई। तो उसी के जवाब में राजकुमारी बोलती है कि वेरी बैडली, बहुत ही बुरी तरीके से। राजकुमारी ने कहा, मैं काफ़ी मुश्किल से मेरी आंखें बंद कर पाई, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और न जाने क्या मुझे मेरे पीठ में चुभ रहा था, बिस्तर के नीचे क्या था मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो जो भी था वो बहुत ही हार्ड था, सख्त था और इसी के वजह से मेरे बदन पे काले नीले धब्बे हो गए हैं और ये एक बहुत ही बुरा नाइट था। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस नाउ, द ओल्ड क्वीन मदर न्यू that she was a real princess because she had felt the pea right through 20 mattresses and 20 feather beds. Nobody but a real princess could be as sensitive as that. The prince finally agreed to marry the princess. There were great celebration at the castle. फिर अंत में क्या होता है कि राजकुमारी का जवाब सुन के मदर क्वीन को ये पता चल गया कि ये लड़की एक साधारण लड़की नहीं है, ये लड़की एक असली राजकुमारी है, क्योंकि एक छोटे से मटर के दाने के ऊपर में इतने सारे गद्दे और इतने सारे फेदर बेड्स लगाने के बावजूद भी उस लड़की को उस छोटे से मटर के दाने का दाना जो है वो चुभ रहा था उसकी पीठ में। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कोमल बेड पे सोने के बाद भी उसे अगर किसी को मटर का दाना चुभे तो वो कोई साधारण लड़की नहीं है, वो एक ऐसी लड़की है जिसे काफ़ी नाजों से पाला गया हो और ज़रूर किसी राजा की लड़की हो या एक असली राजकुमारी होगी। और इसके बाद क्या होता है कि प्रिंस जो है वो अंत में राज़ी हो जाता है प्रिंसेस से शादी करने के लिए और उसके बाद काफ़ी धूमधाम से ग्रेट सेलिब्रेशन से महल में उन दोनों की शादी हो जाती है। Thank you students. So this was the story, the first lesson, the princess and the pea. Thank you very much.